اس میں جا کے جو حالات آپ دیکھیں وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہیں، نرسیں نہیں ہیں، اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر ہے تو فرنیچر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو دوائی نہیں ہے. یہ چیف منسٹر صاحب کا اپنا حلقہ ہے. لاڑکانہ کے اوپر 117 ارب روپے کا پیکج خرچ ہوا اور بیچارے آپ نے دیکھا کل ویڈیو آ رہی تھی کہ وہ امام مسجد جو تھے وہ بیچارے جو ہے وہ شاعری کر رہے ہیں کر کے لوگ بلاول صاحب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پانی نکلوانے کا کوئی انتظام کریں. خیر بلاول صاحب کو تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ بچے ہیں اور بچے تو آپ کو پتہ ہے غیر سیاسی ہوتے ہیں تو ان کا تو اتنا تعلق نہیں مجھے لگ رہا کہ ساری سیاست میں. لیکن جو پاپا اور جس طریقے سے پھپھی انہوں نے جس طریقے سے سندھ کو اپنا یرغمال بنایا ان سالوں میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک جادو کا چراغ ہے، ایک ایسا جادو ہے سندھ کے حکمرانوں کے پاس کہ پھونک مارتے ہیں اور سندھ کے عوام کا پیسہ دبئی اور لندن میں نکلتا ہے. اور یہ جو مراد علی شاہ صاحب جن کے ہم استعفے کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ دراصل وہ چراغ جس کو رگڑنے سے یہ اومنی گروپ کے سارے کام ہو رہے تھے اس کا جن جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے. یہ ان کو جب یہ چراغ رگڑتے ہیں اومنی گروپ والے تو مراد علی شاہ ان کے سامنے حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ حکم کیا، میرے لیے کیا حکم ہے آقا. اور وہ پھر اس کے بعد جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے سندھ بینک سے ہمیں 54 کروڑ روپے کا قرضہ لے دیں، وہ ٹھگ کر کے ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کھل جائیں، وہ کھل جاتے ہیں 54 بلین روپیز کا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقی جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں سمٹ بینک کو ہم نے لینا ہے، اس کو وہ بھی معاملات سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو وہ جن جو ان کے لیے تمام باتیں کر رہا ہے وہ تو مراد علی شاہ ہے. لہٰذا اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے مراد علی شاہ کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے پیپلز پارٹی کے اندر سندھ میں حکومت کی تبدیلی کے لیے، ہر وہ شخص جس کے دل میں سندھ کے عوام کا درد ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ تبدیلی چاہتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں. جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے ہم سے خود سندھ میں پیپلز پارٹی کے اراکین نے رابطہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تبدیلی کے لیے آگے بڑھیں. تبدیلی کی وہ لہر جو باقی 3 صوبوں نے دیکھی ہے، جو پورے پاکستان نے دیکھی ہے، وہ سندھ کا بھی حق ہے کہ وہ اس تبدیلی کا حصہ بنے. سندھ کے عوام کا بھی حق ہے وہ اس تبدیلی کا حصہ بنے. ابھی میں آ رہا تھا، میں فیڈرل منسٹر ہوں اور میں نے اکانومی میں سفر کیا ہے. رضا ربانی صاحب 27 سال سے سینیٹر ہیں اور وہ سب سے بڑے یہاں بنتے ہیں مزدور رہنما بنتے ہیں. وہ سب سے آگے چڑھ کے جو ہے وہ بزنس کلاس میں وہ سفر کرتے ہیں. وہ اپنی انٹائٹلمنٹ ان کی نہیں ہے لیکن وہ منسٹرز ہاؤس میں منسٹرز کالونی میں رہ رہے ہیں. اگر آج بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دکھ ان کو ہوتا کہ آج جس طرح سے سندھ نے فاٹا کو جو کمیٹڈ تھا کہ این ایف سی ایوارڈ میں تمام صوبے حصہ ڈالیں گے، صرف ایک صوبہ حصہ نہیں ڈال رہا اور وہ سندھ ہے. تمام باقی تینوں صوبوں نے وفاق نے اپنا حصہ ادا کیا ہے فاٹا کی ترقی کے لیے. یہ جب باتیں کرتے ہیں کھڑی ہو کے وہاں پہ ویکر گروپس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ خود کو ایک جمہوریت کا چہرہ بنا کے پیش کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ عملی کام آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے خود کو لا تعلق کیا فاٹا سے. وہ پیسے بھی سندھ کے غریبوں میں خرچ نہیں ہونے، وہ پیسے بھی اومنی گروپ اور زرداری گروپ آف کمپنیز کی جو بڑی بڑی شاخیں ہیں ان میں چلا جانا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ سندھ کے عوام کا پیسہ لندن میں خرچ ہو رہا ہے، دبئی میں خرچ ہو رہا ہے. کراچی کے عوام، کراچی کا دیکھیں کیا حشر نشر ہوا ہے کہ پیسے نہیں، لیکن ایک دو جو خاندان ہیں بڑے ان کے لیے پیسے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ سندھ کے جو بیک بینچرز ہیں، سندھ میں جو پیچھے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں جو ووٹ لے کر کے آتے ہیں وہ بھی اس صورتحال کے اوپر خوش ہیں. لہذا تبدیلی کی سب سے زیادہ جو لوگ عوام کے قریب ہیں وہ بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تبدیلی کا سفر شروع ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی خود تبدیلی لے آئے، مراد علی شاہ استعفیٰ دے دے، نیا وزیر اعلیٰ لے آئے. ہم پہلے موقع دینا چاہتے ہیں، اگر یہ موقع سے اویل نہیں کرتے
वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दाम लेने पड़ेंगे, और जो अमली इक़दाम हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे, और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ है। चौधरी साहब ये बताएं आप कि जब लुटेरों की हुकूमत थी, पेट्रोल सस्ता था, दवाएं सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी और मईशत ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज, और पूरा सवाल सुनिए आप मेरा। और जब ईमानदारों की हुकूमत आई है तो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, ये कैसी तब्दीली है बताएंगे? सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त तेल की क्या कीमत बताइए ना। बड़ी ये बताइए बड़ी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ना कर दिया करें, जब भी सवाल करें कोशिश होनी चाहिए, जब बेसिक फैक्ट पे बात करें टेक्निक होनी चाहिए। तेल आज सस्ता है, आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीजें हैं वो सस्ती हैं। डीजल आज उस वक्त से 2 रुपया सस्ता है जब आया था। उसके बाद जो तमाम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीजों के बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ, बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो पार्टी का इल्जाम है कि पीटीआई जो है पहले दिन से सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस मरतबा जो आए हैं आप डीजीए वगैरह के साथ आपकी मुलाकात होगी या मुराद अली शाह को इस्तीफा न देने की सूरत में आप कोशिश करेंगे सिंध में हुकूमत बनाने की? देखिए, पहला मौका हम देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो खुद फैसला करें। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध के अवाम के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी है वो खुद इसको सोचे और मुराद अली शाह से इस्तीफा लिया। अगर वो इस्तीफा नहीं, ये बताइए कि आप क्या आए, सिंध हुकूमत कहती है कि चौधरी फवाद सिंध को यतीम खाना न समझे, और इमरान खान साहब या इसी जगह जहाँ खड़े इसी जगह जंग खड़े होकर कमिटमेंट करते थे वो पूरा होता था। सिंध हुकूमत को कितना वक्त आप देंगे कि वो तब्दीली ले आए, और इमरान खान साहब सिंध के लिए क्या पैकेज करने जा रहे हैं, घर के लिए और सिंध के लिए सुना है कि वो बड़ी तब्दीली के लिए पैकेज कर रहे हैं, दोनों चीज़ों का जवाब दीजिए। यतीम खाना वो होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इस वक्त जो वाली वारिस सिंध का कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत जो है इस वक्त ऐसे ही है कि जैसे जब कोई किसी का इंतकाल होता है और दुश्मन जो है वो घर पे कब्जा कर ले। इस वक्त इन्होंने कब्जा किया हुआ है सिंध के ऊपर। हम तो सिंध के अवाम के जो दुख और दर्द है उनके साथी हैं। हमारी जो पार्टी है उसके वो मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारी पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। हम सिंध के अवाम को सिर्फ हम ये पैगाम दे रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान पूरे से आपकी तरफ आ रहा है आपके ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे, ये जो वो पैसा लंदन अमेरिका में ही निकलता रहेगा। सिंध के अवाम जो है, जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था या जब शुरू हुआ था मामला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तालीम सिंध के जो थी वो कहाँ इंडिकेटर्स कहाँ पर थे। आज जब इनके इक़्तिदार की इतना अरसा हुआ है उसके बाद आज सिंध पे खड़ा है, वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरा ये ख्याल है घबराहट ज्यादा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उन्हें हौसला देने आए हैं कि जनाब आप हौसला करिए और आप अपना जो निज़ाम है उसको हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह पूरा जो निज़ाम है, लेकिन तब्दीली नागुज़ीर है। मीठा सा सवाल, ये किन को आप मशवरा देते हैं कि वो इसे भूगोल पी लें? ये किन के लिए आपने कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या अपने लोगों के लिए? सवाल आया था कि सवाल पूछा गया था कि बाद लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इस भूगोल का छिलका पी के रात को सोया करें, उससे नींद अच्छी है। जो हमने फैसला किया, चांद नवाब साहब का एक सेकंड जवाब, वो जो हमने फैसला ये किया कि हम पैसे दे रहे हैं, वफाक से पैसे आते हैं, सिंध में नहीं लग रहे। इसलिए हमने यहाँ कहा कि कराची में तो कम से कम हमारी एक पुरानी कंपनी है, फेडरल कंपनी है, उसके ज़रिए हम यहाँ पर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक अभी जैसे जब आए थे यूएई के रूलर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ैद आए थे, तो सिंध के लिए सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए आया है, सैलिनेशन, ये जो पानी के पीने का प्रॉब्लम जो है और इंडस्ट्रियल वाटर का जो है। इस तरह से जो भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं पैसा सही सूरत खर्च हो जाए। जितना पैसा सिंध को मिला है, अगर ये जायज़ खर्च होता तो आज सिंध में किसी आदमी के पास कोई गिला करने की बात ना होती, ये मसला हो। एक ही करके ले लेते हैं।
मीडिया जो है वो शदीद बहरान से गुजर रहा है। रोज आना जो है वो कई 100 साफियों से निकाल दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स को, कैमरामैन को। तो आप जो है वो आपके पास है इत्तलात की कमान, तो आपने कोई हिकमत अमली बनाई है कि जो इतना मीडिया रिसेशन आ रहा है, ये तमाम तर बेरोजगार लोग कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से अपने जो है वो घर चलाएंगे, क्योंकि कई हजार जो है वो पाकिस्तान भर से नौकरियों से मीडिया पर्सन्स को हटा दिया गया है। लेकिन आप बाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आपकी जवाब दे रहे हैं, आप समझ आ गई, पॉइंट आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहा गया था कि जो इश्तिहारात में बकाया जात है वो हुकूमत से नहीं मिल रहे, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर हमने 50 करोड़ रुपया जारी किया इस मामले के ऊपर काबू पाने के लिए कि आप ये जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं ये ना निकले। अब मसला ये है हमारा कि हमारा जो पैसे आए हैं उसके बाद भी वर्कर्स को नहीं रुका गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो एजेंसीज हैं। अब हम नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमारी कोशिश ये है तमाम स्टेक होल्डर से मिलके इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि जो हम एडवर्टीजमेंट है वो इस बात से जोड़ देंगे कि आप अपने जो इदारे हैं उनमें तनख्वाहें पूरी करेंगे और लोगों को जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपको इश्तिहार देंगे, वरना हम आपको इश्तिहार देंगे। अच्छा, ये अननोन जो पीटीआई के भी अब निकल आए हैं अकाउंट्स वगैरह, डॉन ने खबर भी छापी है और स्टेट बैंक का भी उससे स्टेटमेंट आया है कि ये क्या है कि पीटीआई भी क्या नॉन उससे निकले खरीदने वालों में। पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉन ने खबर छापी, स्टेट बैंक ने उसको डिनाई किया। उसके बाद डॉन जो है उसको अब चाहिए कि फ्रंट पेज पे उतनी बड़ी माफ़ी मांगे जितने उन्होंने किया। और फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, फेक न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आप काउंटर करेंगे। अच्छा, चौधरी साहब चाहते हैं एक सवाल का जवाब देने। कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो पीटीआई छोड़कर किसी और पार्टी को भी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर, इस सवाल पर? सर अफवाहें हैं, पार्टी का नाम बता दें अगर अफवाहें हैं कि आप पीटीआई छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं, तो ये इसका कुछ जवाब दें। इसलिए कि अब पीटीआई के अलावा और कोई पार्टी बचनी नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारे तो जेलों में। फवाद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेब के केसेस वजीर आजम के हिसाब से भी हैं, तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वजीर आजम के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल चौधरी साहब, आखिरी सवाल, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि पीटीआई जो है यहाँ पे स्टेशन तो बना के नहीं दे रही जो मेट्रो उसके जो मंसूबा तैयार किया था, तो अभी तक वो से कह रहे हैं आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं शाह साहब की हम साथ हैं। शाह साहब देखिए हम कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे दोस्त हैं। पार्टी का वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी कराची पहुंचने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मीडिया बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और आइंदा इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि एडवर्टाइजिंग को मीडिया वर्कर्स की जॉब के साथ मुंसलिक किया जाए। अपोजिशन ने कौमी असेंबली में जारहाना अंदाज अपनाया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि अपोजिशन का वॉकआउट दबाव के हरबे हैं ताकि एनआरओ लिया जा सके, नेब केसेस को बंद किया जाए। साबित हो गया अपोजिशन से वॉकआउट ही कर सकती है, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता। वज़ीर आज़म ने ट्वीट दागा, हर साल पार्लियामेंट पर टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपए खर्च होते हैं, लगता है अपोजिशन बहस नहीं वॉकआउट में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके बाद दूसरा ट्वीट किया, क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूट मार की खुली छूट का नाम है? यूं महसूस होता है इनके नजदीक जो शख्स अवाम के वोट लेकर मुंतखब हो जाए उसी कौमी खजाने पर डाका जनी का लाइसेंस मिल जाता है। ये एनआरओ के हसूल और नए मुकदमात जो हमने कायम नहीं किए उससे छुटकारे के लिए दबाव डालने का एक हरबा है। वज़ीर आज़म के एनआरओ के इल्ज़ाम पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल आ गया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं आपने वॉकआउट एनआरओ के लिए किया। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का ये इल्ज़ाम इतना बेबुनियाद है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। सर, इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। तो अपोजिशन के साथ आज मीटिंग है आपकी, क्या हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं? बताएंगे आप।
इमरान साहब जिस पार्लियामेंट का एहसास करे 5 साल वहां से भागते रहे, उसी पार्लियामेंट पर हमला करते रहे। नवाज लीग का वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल सामने आया है। मरियम औरंगजेब ने तनकीदी निश्तर चला दिए। कहती हैं इमरान खान साहब, पार्लियामेंट और हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती। आप हमेशा की तरह इल्जामात लगाकर अपोजिशन से अपनी नाअहली का एहनार हो जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने वजीर आजम का तलाश गुमशुदगी का इश्तहार देने वाले हैं। अपोजिशन आपकी नाअहली पर खामोश नहीं होगी। अपोजिशन पूछती रहेगी कि रुपए की कदर में 35% इजाफा कैसे हुआ, कर्जों में इजाफा कैसे हुआ, महंगाई में 100% इजाफा कैसे हुआ। इमरान साहब, अपोजिशन आपको अलीमाबाजी और फॉरेन फंडिंग में एनआरओ नहीं देगी। साहब, वज़ीर आज़म का जो ट्वीट आया है उस पर मैं कहना चाहती हूँ इमरान साहब को कि हुकूमतें और पार्लियामेंट ट्विटर पे नहीं चलते, और पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम तो वैसे ही तलाशी गुमशुदगी का इश्तिहार देने लगी है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का कितना कॉस्ट करती है पार्लियामेंट, तो मैं इमरान साहब से पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त ये बातें कहाँ थी जब 2 साल भागे रहे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट पे हमला किया, पार्लियामेंट पे लानत भेजते रहे और अभी भी पार्लियामेंट से फरार हासिल की हुई है। और इस तरह के एनआरओ के इल्जामात लगाकर आप ना पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाएं और ना हमें धमकियां दें और ना हमें डराएं, क्योंकि हम आपके एनआरओ और आपके इल्जामात से डरने वाले नहीं हैं। और ऑपोजिशन आपको अलीमाबाजी पे और फॉरेन फंडिंग पे एनआरओ नहीं देगी। ऑपोजिशन आपको आपकी अपनी नाअहली और अपनी काबीना की नाअहली और हुकूमत की नाअहली पे एनआरओ नहीं देगी। और उधर वज़ीर आज़म के एनआरओ के ताने पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी बोल पड़े। कहते हैं कि इमरान खान ने पता नहीं कि एनआरओ का नाम कहां से सीख लिया, हम एनआरओ मांगने वाले नहीं। खुर्शीद शाह बोले कि इमरान खान खुशकिस्मती से वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन्हें कोई भी बात करते हुए ख्याल रखना चाहिए, वो अहम पोजीशन पर हैं। कम से कम वज़ीर आज़म को इतना इल्म होना चाहिए कि सियासतदान क्यों बाइकआउट करते हैं, ये हुकूमत की जानिब से बनाए माहौल की वजह से है। हम पार्लियामेंट आते हैं, बाइकआउट करते हैं। आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं आते, आपको हर हफ्ते पार्लियामेंट आना चाहिए था, सवालात के जवाबात देना थे। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो इमरान को ये कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अब बहुत अहम पोजीशन पे है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली बन गया। हम उसको मानने के लिए भी तैयार है कि भाई तू बन गया, तो कम से कम उसको इतना इल्म होना चाहिए कि ये सियासतदान जब बैकआउट करते हैं, पॉलिटिशियन जब बैकआउट करते हैं या पार्लियामेंटेरियन बैकआउट करते हैं तो वो क्यों करते हैं। पहले तो ये जो माहौल पैदा किया है हुकूमत ने, एक तो बात ये है। दूसरा, हम तो बैकआउट करते हैं, आते हैं, इसलिए आपसे पूछता हूँ मैं कि आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप तो पार्लियामेंट का एहतराम करें, हम तो पार्लियामेंट में फिर भी आते हैं, बात करते हैं। आप क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में, आपको तो हर हफ्ते आना था, जवाबात देने थे, तो आप क्यों नहीं आते। तो कम से कम ऐसी बात तो मत करो कि जिसमें जगह सही तुम्हारी हो। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं, ये पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से उसने सीख लिया एनआरओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी को प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया। हुकूमत को बने 5 माह हो गए हैं, शौक पूरा होने दें इन सब का जिन्होंने लाने में सपोर्ट की। हुकूमत को मुल्क चलाना नहीं आ रहा, मुल्क इनके हाथों लरज रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होना हुकूमत का दबाव लगता है। स्पीकर कौमी असेंबली को कोई प्रेशर में नहीं आना चाहिए। मेहरबानी फरमा के अपनी और अपने साथियों की ज़बान ठीक करवा दें और कुछ शाइस्तगी इख्तियार करें जो पार्लिमानी ज़बान है, तो माहौल कौमी असेंबली का बेहतर हो जाएगा। सब कमेटी के लिए तो आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए, लेकिन इजलास के लिए नहीं हुए, ये दोहरा मियार क्यों है? ये अब आके पता करेंगे, आप लोग भी पूछें। मुझे तो ये बताया गया, मेरी पार्टी ने कहा कि उन्होंने बात किया, तो वो कह रहे हैं जी बड़ा ट्रमेंडस प्रेशर है। क्या प्रेशर है, किसका प्रेशर है भी है कि नहीं है। हुकूमत है, एक स्पीकर साहब हैं, बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, किसका प्रेशर है। मुझे तो गवर्नमेंट का प्रेशर ही लगता है, तो गवर्नमेंट को ये प्रेशर एक्सर्ट करने से बाज रहना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार कीजिए, 5 महीने हो गए हैं, शौक पूरा होने दें उन सब लोगों का जिन्होंने इनकी सपोर्ट की है यहाँ तक लाने में। एक नॉन स्टार्टर है, एक ऐसी हुकूमत है जिसको मुल्क चलाना नहीं आ रहा और मुल्क लर्ज रहा है उनके हाथों।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन कमेटी रियाज पतियाना कहते हैं कि साद रफ़ी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके दोस्ती नहीं निभाई बल्कि कानूनी तकाजा पूरा किया। न्यूज़ ने सवाल किया, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का कानूनी तकाजा तो स्पीकर को पूरा करना चाहिए था। रियाज पतियाना ने कहा कि इसका जवाब तो स्पीकर ही दे सकते हैं। मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए साद रफ़ी की दरख्वास्त मौसूल हुई जिस पर मैंने ऑर्डर जारी किए। क्या आपने ये दोस्ती है या कानूनी तकाजा पूरा किया, स्पीकर ने जारी नहीं किए? इसका जवाब तो आप स्पीकर साहब से लें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे एक ही एप्लीकेशन मेरे पास आई है, शहबाज शरीफ की तरफ से आई नहीं और साद रफ़ीक साहब की तरफ से आई है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास आज होगा। इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में होगा। इस्लामाबाद इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, फौजी अदालतों के क़याम में तोसी समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे और ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी भी शिरकत की दावत दी गई है। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर असदुर रहमान भी शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी। शाकिर अब्बासी, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या है इस होने वाले इजलास के हवाले से? कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के कायदीन का इजलास आज होगा। इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में होगा और इस्लामाबाद इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, फौजी अदालतों के क़याम में तोसी समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे और ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर असदुर रहमान भी शरीक होंगे। शाकिर अब्बासी हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। शाकिर अब्बासी, मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। देखें, आज बड़ा अहम इजलास होना है अपोजिशन चैम्बर में, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इजलास बुलाया है अपोजिशन शहबाज शरीफ ने, जिसमें वो अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से जो है वो खास करके जो एक इशू चल रहा है फौजी अदालतों के हवाले से उस पर मुशावरत करेंगे और दीगर जो उमूर है उसको भी इस इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो है वो आसिफ ज़रदारी, उनके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जबकि फजलुर रहमान की जमात से भी उनके बेटे जो पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना असद, वो इस इजलास में शरीक होंगे। ये दोहराने पे मदऊ किया है अपोजिशन लीडर ने इन तमाम रहनुमाओं को और इसमें फौजी अदालतों के क़याम में तोसी समेत दीगर उमूर पर उनको जब उनसे मुशावरत करेंगे और एक मुतफ़िका लाएअमल अपोजिशन अपनाने के लिए कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। डिवीजन बेंच नवाज शरीफ की दरखास्त पर भी 21 जनवरी को समाअत करेगा। तफसीलात भी आपको इस हवाले से देंगे। अभी तक की इत्तलात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। नुमाइंदा न्यूज़ दिशान सईद हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, आप आगाह कीजिएगा, डिटेल्स क्या हैं अभी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें जो है वो आज भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है 21 जनवरी को समाअत करेगा, जो कि 21 जनवरी में नवाज शरीफ की अपील की और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। एक ही दिन पर नवाज शरीफ और नैब के दोनों रेफरेंसेस जो है एक ही बेंच समाअत करेगा। डिवीजन बेंच में जो है जस्टिस आमिर फारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो समाअत करेगा और 21 जनवरी को जो है ये दोनों रेफरेंसेस में नैब की तरफ से अल अज़ीज़िया में सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को शक की बिना पर बरी करने के खिलाफ जो अपील पर समाअत होगा, जबकि नवाज शरीफ की दरख्वास्त जो है वो सजा मुअत्तली के खिलाफ ही है जी की गई थी। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाक पतन दरबार अराजी केस में जीआईटी ने नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी रिपोर्ट पर नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। पंजाब हुकूमत को भी अपना जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने जमीन अलॉटमेंट की तरदीद की तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, अब तो इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, ट्रायल कोर्ट में जरा हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी, कोई बच नहीं पाएगा।
पाकपतन दरबार अराजी केस, JIT ने जमीन मुंतकिल करने के अहकामात में नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में DG पंजाब एंटी करप्शन ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी, जिसमें इंकशाफ किया गया कि पाकपतन दरबार की जमीन नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। हुजरा शाह मुकीम और दरबार हाफिज जमाल की जमीन भी दी गई। पहली तफ्तीशी रिपोर्ट 2015 में दी गई, जिसमें वजीर आला को जिम्मेदार ठहराया गया। 2016 में दूसरी रिपोर्ट बनाकर वजीर आला का नाम निकाल दिया गया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि मियां साहब ने जवाब दिया था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, ऐसा ना हो हम एंटी करप्शन को पर्चा दर्ज करने के लिए कह दें। आप शाह से ज्यादा शाह का किरदार अदा कर रही हैं। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी, अब वो दौर नहीं रहा। तीसरी रिपोर्ट नहीं बनेगी। वेलकम बैक। इंसानी स्मगलिंग में इंतहाई मतलूब अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। FIA रिपोर्ट के मुताबिक रेड बुक में 29 इंतहाई मतलूब अफराद का इजाफा हुआ, तादाद 112 तक पहुँच गई है। FIA की तैयार करदा नई रेड बुक 2018 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की फहरिस्त में 4 खवातीन भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस रिपोर्ट के बारे में। जी बिल्कुल, इंसानी स्मगलिंग में इंतहाई मतलूब अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। रेड बुक में 29 इंतहाई मतलूब अफराद में इजाफे के साथ तादाद 112 हो गई, जबकि FIA की तैयार करदा नई रेड बुक 2018 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में 4 खवातीन के नाम भी शामिल किए गए हैं। रेड बुक में इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते भी दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा 58 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि 34 का ताल्लुक विफाक इस्लामाबाद से, जबकि 15 3 खैबर पख्तूनख्वा, 2 बलूचिस्तान से हैं। इंतहाई मतलूब अफराद की इस तादाद के साथ इजाफे में 112 हो गए, जबकि पंजाब से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में नादिया तनवीर नामी खातून पहले नंबर पर हैं, जबकि बलूचिस्तान के 2 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स गुज़श्ता 2 साल से जारी हैं, जिन्हें अब तक FIA गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑपोजिशन अरकान असेंबली का एक मरतबा फिर कौमी असेंबली में एहतजाज, डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन रुकन के बिल पर वोटिंग में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ऑपोजिशन के एहतजाज पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास में 10 मिनट का वक्फा कर दिया है और ये मनाज़िर भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोबारा रूल आइन जो है वो इजाजत ही नहीं देता, मैं कैसे कराऊं? ऑपोजिशन अरकान असेंबली ने डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। ऑपोजिशन रुकन के बिल पर वोटिंग में धांधली का इल्जाम आयद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल के गैर मयारी स्टंट से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने जना अजहर कियानी और दीगर मुतालिका हुकाम को मामले पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि गरीब आदमी का क्या पता उसके दिल में किस मयार का स्टंट डाला गया। मैं बार बार हुकूमत से कहता हूँ अपने स्टंट डेवलप करें। लोकल स्टंट को टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजा गया, आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बोर्ड की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत हुई। स्टंट की कीमतों का मामला तय नहीं हो रहा और इस हवाले से बताया गया कि गरीब आदमी को क्या पता कि उसके दिल में जो स्टंट डाला गया है वो किस मयार का है। कितनी बार कहा है कि लोकल स्टंट को डेवलप करें। और आपको बताएं कि बढ़ती आबादी एक बॉम्ब है। कंट्रोल करने के लिए हुकूमत, पार्लियामेंट, मजहबी स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी मिलकर मुहिम चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हुई आबादी से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि पूरी कौम को आबादी में इजाफे के खिलाफ जंग लड़ना होगी। ये आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने FIA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दी है। अदालत ने रिमार्क्स दी कि पहले भी जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया, अब फिर मोहलत मांगी जा रही है, मजीद मोहलत नहीं देंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। नामजद अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरखास्त पे समाअत। FIA ने एक बार फिर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले भी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया गया, अब फिर मोहलत मांगी जा रही है।
अनवर मजीद की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। FIA झूठे मुकदमात बना रहा है, हिरासा करने से रोका जाए। अदालत ने कहा आखिरी मोहलत दे रहे हैं, मजीद मोहलत नहीं देंगे। जुनेद शाह, नियो न्यूज़, कराची। हुकूमत ने अवामी नुमाइंदों और सरकारी मुलाजमीन पर गैर मुल्की मेहमानों से तोहफे तहफ़ लेने पर पाबंदी आयद कर दी। पहले से 5वें स्केल के मुलाजमीन नकद तोहफा ले सकते हैं। आसिफ मुसव्वर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, अवामी नुमाइंदगान और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों से तहफ़ लेने पर पाबंदी आयद करते हुए चारों सूबों को आगाह कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत के सिवा कोई भी अवामी या सरकारी ओहदेदार बैरून मुल्क से आए किसी वफ्द या सफीर से तोहफा या नकद रकम बतौर तोहफा नहीं ले सकता। तहफ़ लेने वालों की फहरिस्त वजारत खारजा या मुतलका वजारत काबीना डिवीजन को फराहम करने की पाबंद होगी, जबकि मजबूरी में तोहफा लेने की सूरत में फौरी तौर पर सरकारी तोहफा खाना में जमा करवाया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक पहले से 5वें स्केल के मुलाजमीन नकद तोहफा ले सकते हैं, तहम तहफ़ वसूल करने वाले तोहफे की मालियत का निस्फ अदा करके इसे खरीद सकते हैं। आसार कदीमा या तारीखी नौयत के तहफ़ निस्फ मालियत पर भी खरीदे नहीं जा सकेंगे, बल्कि तोशा खाना में ही जमा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद तब्दीली, सरकार का शहरियों को एक और झटका। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में OPD की पर्ची फीस में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 20 रुपए में मिलने वाली पर्ची अब 30 रुपए की कर दी गई है। 1 अप्रैल से पर्ची 40, जबकि जुलाई से OPD की पर्ची फीस 50 रुपए वसूल की जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पहले अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, अब लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में OPD की पर्ची फीस में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 20 रुपए में मिलने वाली पर्ची 30 रुपए की कर दी गई है। 1 अप्रैल से पर्ची 40, जबकि जुलाई से OPD की पर्ची फीस 50 रुपए वसूल की जाएगी। और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ वादे करती और भूल जाती है। हुकूमत ने रियासत मदीना बनाने का वादा किया, लेकिन वफाकी शरई अदालत ने हुकूमत के सूद की वकालत की और इस हवाले से आइन का तकाजा है कि वफाकी शरई अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत यहूदी और सूदी निज़ाम की हमायत ना करे, अक़लियतों के नाम पर शराब रोकने पर अक़लियतों के साथ हैं। हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी जमातें शराब और सूद पर एक हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ वादे करती और भूल जाती है। हुकूमत ने रियासत मदीना बनाने का वादा किया, लेकिन वफाकी शरई अदालत में हुकूमत सूद की वकालत कर रही है। और PIA का सऊदीया ना ले जाने वाले 80 मुसाफिरों के एहतजाज का मामला। ज़राए ने बताया कि निजी ट्रैवल एजेंसी ने PIA के 2.5 करोड़ के बकाया जात अदा करने हैं। ट्रैवल एजेंट PIA के खिलाफ हुक्म इम्तनाई भी लाया था। अदालत ने एजेंट को PIA की रकम अदा करने का हुक्म जारी किया। तर्जुमान PIA के मशहूर ताजिर का मौक़िफ़ है कि रकम की अदायगी न होने के बायस टिकट्स कैंसिल की गई। माजरा क्या है, नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी बताएंगे। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जब लक्की मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले 80 के करीब जो है मुसाफिर जद्दा जाना चाह रहे थे उम्रा के लिए। जब उनको बताया गया कि PIA की जानब से उनके टिकट्स कंफर्म नहीं किए गए तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया था, जिसके बाद जो है अपना PIA इंतज़ामिया की जानब से अब मौक़िफ़ सामने आया है कि निजी ट्रैवल एजेंसी ने उनके 2.5 करोड़ रुपये की रकम की अदायगी करनी है, जो बकाया जात की सूरत में है, जिस बिना पर उन्हें पहले ही आगाह कर दिया गया था। और ट्रैवल एजेंसी जो है अदालत आलिया से इस हवाले से हुक्म इम्तना भी लेकर आई थी। ताहम जो है अदालत ने भी एजेंसी को हुक्म दिया था कि वो 2.5 करोड़ के वाजिबात फौरी तौर पे अदा करे। उसके बावजूद उन्होंने मुसाफिरों की टिकट्स के हवाले से रिजर्वेशन करवाई थी और ये बहुत शुक्रिया अभी तक की तफसीलात से आपने आगाह किया। डॉल्फिन स्क्वाड ने गुलशन इकबाल लाहौर से अगवा होने वाला बच्चा बासियाब करवा लिया है। बच्चे को 2 रोज़ पहले गुलशन इकबाल से नामालूम खातून ने अगवा किया था। DIG ऑपरेशंस के अहकामात पर डॉल्फिन स्क्वाड और पिरू को मख्फी बच्चे की तस्वीर फराहम की गई। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजिम को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर अगवाकार खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाजी
हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हॉस्टल में आतिशबाजी के बायस लाखों की मालियत का सामान जलकर राख हो गया। आरिफ वाला में बहावल नगर रोड पर तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान बहक, जबकि बस में सवार 6 मुसाफिर भी जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके चूंग में ट्रैक्टर ने एक शख्स को कुचल दिया। इमरान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। लाहौर में शौकत खानम अस्पताल के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हॉस्टल उमर हॉल में आतिशज़दगी के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। तलबा ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। ज़राए के मुताबिक आग सर्दी से बचने के लिए लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक हीटर से लगी। और सर्दियों में गैस की बंदिश ने शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। शहरी मौत बांटने वाले सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। रावलपिंडी में सिलेंडर धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। गैस की लोड शेडिंग अवाम पर दोहरा अजाब बन गई। शहरी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। रावलपिंडी के इलाके कुर्तापुरा में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर धमाके में 3 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। धमाका नाश्ते के लिए घर में चूल्हा जलाते वक्त पेश आया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गैस न मिलने की वजह से अवाम 2 वक्त की रोटी बाजार से खरीद कर लाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें गैस लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाई जाए। कराची के तारीखी उर्दू बाजार पर तजावुजात के खतरे का निशान मारूफ मकतबा फरीदी के मालिक 95 साला ईद मोहम्मद फरीदी इल्म व अदब के दिए जलाए रखने के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं कि उर्दू बाजार की तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जाए। कराची से आसिम अशरफ की रिपोर्ट। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के साथी पब्लिशर्स की दुनिया में उर्दू के गुमनाम सिपाही का लक़ब पाने वाले 95 बरस के ईद मोहम्मद फरीदी उर्दू बाजार की मिसमारी का सुनकर रंजीदा हैं। बाबाए उर्दू के साथ गुजरे लम्हात कांपती आवाज के साथ सुनाने बैठे तो सुनाते चले गए। मेरे साहब से बाबा उर्दू ने फरमाया कि भाई ये कागज की दुकान, किताबों की दुकान कागज बिछा के लगाते हैं, आप इनको कॉलेज में कोई जगह दें। तो मेजर साहब ने कहा कि भाई जगह तो कोई ऐसी नहीं, जीने के नीचे आप अपना एक खोखा डाल लें, यानी केबिन डाल लें। ये बात 1950 या 51 की होगी। मकतबा फरीदी के मालिक ईद मोहम्मद फरीदी कहते हैं, उर्दू किताबों पर उस वक्त काम शुरू किया था जब इसमें पैसे लगाने से लोग डरते थे। मैंने तो उर्दू का काम जब से साफिला शुरू किया है कि जब लोग डरते थे इसमें हाथ डालने में। फरीदी साहब की 2 नस्लें उनके इस काम को जिंदा रखने के लिए मकतबा फरीदी संभालती हैं। हम कहीं भी मूव कर जाते हैं तो उर्दू बाजार की जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे असतज़ाए कराम हैं, इसके अलावा स्टूडेंट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे तमाम चीज़ें नहीं दस्तयाब हो सकेंगी। कराची का उर्दू बाजार इब्ने इंशा समेत कई अहम शख्सियात की इल्मी प्यास बुझाने का वो कुआं है जिसे शायद यहाँ से मुस्तकबिल करीब में ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरह सांसें जिस्म का रिश्ता जान से बरकरार रखती हैं, उसी तरह किताबों से रिश्ता बरकरार रखने के लिए उर्दू बाजार भी लाजिम है। 95 साला ईद मोहम्मद फरीदी जैसे उर्दू दानों को अब ये खतरा लाहक हो चुका है कि कहीं उनका ये रिश्ता टूट न जाए। कैमरामैन मुहिउद्दीन के साथ आसिम अशरफ, न्यूज़ कराची। सर्दी के मौसम में रसीले किनू हर कोई खा रहा है। फैसलाबाद वालों का कहना है कि सर्दियों में धूप में बैठकर रसभरे किनू खाना बहुत लुत्फ देता है। जवेरिया नज़ीर की रिपोर्ट। शदीद सर्दी में सूरज ने मुखड़ा दिखाया तो शहरी मीठे रसीले किन्नू खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। दुकानदारों ने बागों से बाजारों की जीनत बनने वाले किन्नुओं को खूबसूरती से सजा रखा है।
डॉक्टर भी इसे रेकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। बेसिकली सर्दियों में वैसे भी बैठ के इसे एंजॉय किया जाता है मौसम। आज मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार है। हम सब दोस्त मिलके किन्नू खाएंगे, 5-6 दोस्त किन्नू ले जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। शेखुपुरा का किन्नू हो या फिर सरगोदे का खट्टा मीठा रसीला किन्नू, सब भी अपनी मिसाल आप हैं। शहरी कहते हैं कि धूप में बैठकर वो रसीले फल किन्नू से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस वक्त किन्नू की फल की फरोख्त ज्यादा हो रही है। किन्नू इस वक्त महंगे दामों में बिक रहा है। कुदरत की नेमतों में से फरहत बख्श फल किन्नू सर्द मौसम का मेहमान है, तो बाजारों में ये फल 120 रुपए से 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। सर्दियों के मजेदार फल किन्नू में पाए जाने वाले कुदरती अज्जा समेत कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी जहां इंसानी सेहत के लिए मुफीद माने जाते हैं, वहीं कई बीमारियों से ये फल महफूज भी रखता है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ फेरिया नजीर नियो, फैसलाबाद। मुसलसल शिकस्तों से परेशान पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने पाकिस्तानी टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार किया।